See, I don't think the sir will be joining today because I don't know whether he is in campus or not. But today is Chhat Puja, so I got an intuition from the sir side only that he will not be joining today, right? तो जो उस दिन सर ने क्विज लिया था, हो गया था क्विज उस दिन ठीक से। यस सर। लेकिन सर भाई मतलब थोड़ा हाँ, सा थोड़ा सा टेल। सर मतलब जैसे क्वेश्चंस में सर जैसे हम जो थोड़ा बहुत कम पढ़ा था थोड़ा उससे ऊपर ही था। सर बोल रहे थे बेसिक्स दिया था, मैंने देखा नहीं क्विज। सर वो जो रिस्पॉन्स है वो फॉरवर्ड कर दूंगा अगर आप आपके मेल पे। नहीं, मैं चेक कर सकता हूँ वैसे तो उसको। सर ने मुझको को टीचर उसमें बनाया है, ओके ओके। क्लास वर्क में जाके। और क्विज वन है। आई थिंक आई हैवंट शेयर द स्क्रीन नाउ, है ना? यस सर। या गिव मी अ मिनट। ओके, मतलब वो शेड्यूल्ड क्यूज था इसलिए अभी दिखा नहीं रहा है, बट आई कैन ग्रेड्स में जाके कुछ होगा क्या? Your marks has been allotted to you, है ना? Out of 32, sir has already given the marks also. And Pragya and Sahashad or Shashank, they were missing their quizzes. What happened? They could सर not. शाशाद ने तो लेफ्ट कर दिया है कॉलेज एक्चुअली। Okay, ही okay. ज्वाइन बेट्स हैदराबाद। So सर मेरा मैं एडमिशन नहीं हुआ था सर, 10 तारीख को एडमिशन हुआ तो पुराना मिसिंग है। Shashank, you came late. You told me, right? यस सर। Okay. Then Umanga Kumawat, she also missing. See what happens ना, sometime we could not submit. हो ही नहीं पाता है, पता नहीं क्यों, रीजन आई डोंट नो। अच्छा नहीं, ये तो क्विज है, ये असाइनमेंट है, ठीक है। दिस इज द क्विज। शशद एंड शशांक ओनली कुड नॉट सबमिट। ओके, सो देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस इन द मैट लैब। आगे का जो भी पार्ट है मैट लैब का वो सब एप्लीकेशन बेस है ना? मतलब आपको कोई एप्लीकेशन कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, यू हैव सीन द आउटर थिंग्स ओनली, मतलब एक आउटर प्लेटफॉर्म कैसा होता है मैटलैब का वो देख चुके हो। लेकिन अगर आपको बहुत इनिशियल जाना है, फंक्शन को यूज करके उसके मल्टीपल डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है, तो फिर आपको कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन उठाना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन उठाने के लिए सर ने आपको पेपर वगैरह सजेस्ट किए हैं। तो आई अंडरस्टैंड एक 30 days और इज नॉट एनफ टू इम्प्लीमेंट वन पेपर, बट अगर आप कर पाते हो तो दिस इज समथिंग गुड, गुड फॉर यू, है ना? एक बार कोई पेपर कर लोगे तो फिर आपको आगे के पेपर के लिए भी अच्छा आइडिया हो जाएगा। बिकॉज सी फॉर मी ओनली it took around 3 months to like to identify what I have to do in my MTech research. It took 3 months, and my guide from the Thapar University, he hasn't like gave a single clue to me how we have to start. So you are lucky enough that sir is like mm, helping you around, like giving you the options, opening every dimension that you can go to your particular like interest. And also a bit I also helped you अगर आपको ठीक लगा हो तो। So but usually people do not help, you know, I have seen it, and especially in a like institution of national importance like NIT हो गया, IIT हो गया, ट्रिपल IIT हो गए। So the image of the faculties is not very good, you know. They do not help at all, but sir is like helping you out of the box. Okay, so it's good. So today two things we will do.
one thing that I have not included till now in the presentation is the use of the Excel sheet. Okay, how we can use the Excel sheet in the form of the matrix. And the second thing, I'll take your questions today. Questions not in the sense only MATLAB, but if you have any difficulty, so we'll share your difficulties and we'll try to find the optimal solutions. Okay, so I already started this MATLAB session. I told you that I will be working on that Excel file today. Okay, so this is your folder test program. So till now we have not included any Excel file over here. So first what we have to do, we'll go to the test program and we'll create a Excel file here. Okay, so I'm opening this. The complete screen is shared with you, so you can see every process what I'm going to do. This program folder is here. Microsoft Office Excel. I'm creating this file over here and give the name. Okay, so uh, any name you can give, say matrix. For me it's a matrix. Okay, matrix और थोड़ा सा देना है matrix file कर दो matrix test file. एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं होती है, बट आपको एक्सटेंशन पता होना चाहिए बिकॉज if you are using different Microsoft offices, some basically uses the .xls and some basically uses the extension .xlxs. So let's check the format so that it will help you in calling this file. So this is the type of the file, which is .xlsx. Okay, we can change the format here, but we are not intended to. Why we should not increase our difficulty level otherwise. So it is empty by default. We'll have to create something inside it. So we'll take a matrix of 5 cross 5 or whatever, any value I'm randomly picking, so that it should not take any uh, normalized data. I'm taking 12 here, then I'm taking 12 again, 34, 55 I can take, the 15 I can take, 16 I can take, 1 here, 1 here, 1 3 I am taking here, 76, 70, 66 I have taken, and 09. 09 will by default will be converted into the 9 only. 87 I'm taking two uh, digits only in the number, and as I told you, it is not planned, so I'm taking any value by default. See, I left this space unintentionally, but if it is left, we'll see what will happen if I'm not giving any value to it. Okay, so this space is actually left blank. It is not having any garbage value though. So no. So don't think that I have not given any value to this space. It will be considered at 0. No, we'll see to it. What will happen if I left a space blank in the Excel sheet? So only how many rows are there? 5, and columns are there only 4. So as I told you already, I will take how many columns? 5 column I will take. Okay, so it's okay now. So our file is actually created. I'm closing it because while the file is open, you cannot edit it. Okay, so you will have to close it. So now, are you able to see this file in the folder? Yes, matrix test file .xlsx. So I am giving the name my file, and I will read it as whatever the name is given, matrix underscore test underscore file, and then the extension xlsx, close it.
The color is changed to the purple. The color is changed to the purple. It means, uh, we are not facing any syntax problem. Okay. Should I push the enter? Yes, it is. So file is actually is copied to the my file. Okay, file is copied to the my file. So, but I have to read it. Okay. I'm just doing to check what will happen if I type my file. Okay, it's a format matrix, but the content is not like copied to the my file. The content is not copied. So what we have to do, we have to read Excel file. So for that, what we will do, I have opened the help already. So from here you can see if you have to read a file, this is the format. Okay, XLS read and the file name. So I'm copying it from here only, paste it. So you are interested to read it into the my file 1 equals to the XLS read. The file name was my simple. Just put the semicolon so that it should not take this space over. Is it working? अभी तक यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे कर्सर नहीं आया, इसका मतलब इट इज रीडिंग. So this is one of the problem with the Excel file. When you every time you read and write your data in of matrix format into the like XLX format, so it takes time. It basically takes time. So it is done now. Okay. So what I'm going to do now is check whether the file is read or not. Okay. So now you see. Also, one space I left over there, it has come as NaN. So NaN stands for not a numerical. So whatever the space I left over there was left intentionally or unintentionally will be treated as not a numerical value. Okay. So you cannot use this value in your numerical calculation. ये वैल्यू यहाँ पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में यूज नहीं हो पाएगा. So this is how you read your Excel file. One of the shortcut that you could have used, just copy this upper command over here, and here only you can write how much I know. XLS read, close it into the parenthesis, and just run it. So this time what we did, we read the file into the my file only, not in my file 1. My file. So now you can see. Okay, इतना सारा मैंने लंबा सा प्रोसेस कर दिया था, बट मैं इसको ऐसे भी कर सकता था. ओके, तो इस तरीके से आपका एक मैट्रिक्स फॉर्मेट है वो यहाँ पर हो गया है. अब इसके ऊपर आप माई फाइल, जो कि एक मैट्रिक्स फॉर्मेट है 2 डायमेंशनल, it has multiple number of rows, it has multiple number of column, you can perform your operations. Okay, so what kind of operation we can perform, like choosing any particular row or choosing any particular column. So just place a column within and say 3. Any guess what will happen? I'm not talking about any row. So by default, every row will be considered, and I'm taking only third column. So third column, every row. Okay. Yeah, or you can say every element in the third column, which will represent nothing but the rows content. So you can see रो कितने आ रहे हैं इसमें, सारे रो हैं, 1 2 3 4 5. How many rows? Okay, 6 rows are there actually. I was considering it as 5 only, but there are 6 rows. हमने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे.
So what is happening? Where the third column? This is the 87, 66, 55. So what is happening here? I am considering every row, but only the third column. So you can see, okay, third column. If you want to extend this idea, so what is happening? I'm again taking, leaving the rows format blank. ये रो वाला साइड का जो है वो फिर ब्लैंक छोड़ दिया है, कॉमा कॉमा स्टार्ट होते ही क्या हो जाएगा, यू आर टॉकिंग अबाउट द column 3 4 5, okay, from 3 to 5, so it will take all the columns from 3 to 5. So this is the idea you can use. Up now the next thing is left, what you can do. तो ये तो रीड कर लिया, अब हमें क्या करना है, इसको राइट करना है, ठीक है. अब नाउ मैट्रिक्स इज प्रेजेंटेड ओवर, यू वांट द मैट्रिक्स टू बी saved back to your, after performing some operation. For example, you are like say my file 2 equals to 2, will it work? I don't know whether it will work or not, but let's roll it down. It should, sir. So a scalar, this 2 is nothing but a scalar, so this scalar I have multiplied so that I should get some other matrix than the my file. Okay, so my file is some matrix and my file 2 is some like transformed form of the my file matrix. Okay, this my file 2. So I am interested to save this particular thing into the Excel format only, back to the our current directory. So what we will do in that case, we will be using xls write command, in which we'll take the syntax we can check for writing the just by taking the file name comma a, whatever the name you want to give, syntax is available. क्या नाम देना चाहोगे? Matrix underscore test underscore file 2. Will it work? Undefined function of the variable matrix test file 2. Whether I'm undefined function or variable, so let's do it again. Shall I put the extension? Okay, I check the example only. Here it is the example. What we have to do, xls write file name. Okay, उल्टा कर दिया शायद हमने. जिसको राइट करना है उसको बाद में लिखना है, ठीक है, उल्टा कर दिया है. Undefined function of the variable matrix test file 2. So obviously I'm making some mistakes, so what do we need to do, we'll check the any particular example, just the matter of the syntax only, है ना, और कोई गड़बड़ नहीं है उसमें. But I always like told you
that it's good to have the error. Otherwise, if you will not be making the mistakes, it's like a flow. Yeah, you are going in a flow that you are not stuck in anywhere. Once you make the mistake, you know that you actually made that particular mistake, that particular point because of that particular reason. So next time when you will be performing all these things, you'll not be making such mistake. Okay, so I guess I was forgetting to put this parenthesis. I don't know. काफी टाइम हो गया तो just put the parenthesis. It is running. So if the file will be created, it will be shown over here. Okay. Yes, it is created now. Okay. So you see matrix test file 2. So this file is actually created here, and we'll go to the folder and see whether the file is here or not. Okay. So we can clearly see in test program, I have not created this file manually, but with the help of the code. So we'll open it. Okay, so you see this. The file is created here. Just one last thing I will consider here, that I will take another Excel file and I will convert this Excel file into the image. Okay, so मैं इसमें लिख रहा हूँ matrix underscore image, मतलब एक मैट्रिक्स में यहाँ पे क्रिएट करूंगा and I will create that matrix into the image only. So a small image. So what I'm doing, I'm taking this value as 0, okay, and copying this 0 to say JSTEM, and then 10 over here. Now I'm taking this value as 255. How many? K is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's good. And then इस तरीके से थोड़ा सा देखो, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. I'm taking these values nothing but as a pixel only. Okay, and you know that in a grayscale image, 0 stands for black and 255 stands for white. So I'm trying to create this particular 10 by 10 block as a black portion of the that particular image, and this 255 का 10 by 10 पिक्सल का जो वो है एरिया, वो एज अ वाइट पिक्सल की तरह क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ. So what I'm going to do again, just क्योंकि इतना कम पिक्सल साइज आपको दिखाई भी नहीं देगा, तो एक बड़ी, ये क्या हुआ, बड़ी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ से. फिर से मैंने कॉपी किया और आगे इसको रोज में बढ़ाता जा रहा हूँ. वो ही फिर से कॉपी पेस्ट, बिकॉज यू नो दैट इमेज तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो, मेगा पिक्सल में तो नहीं ले जा पाऊंगा मैं, क्योंकि पूरा 1 आवर हाफ एन आवर तक का टाइम लग जाएगा उसमें इमेज क्रिएट करने में. बट what I'm going to do, just creating an enough space. एनी आइडिया किस तरीके का इमेज क्रिएट होगा, कोई बता सकता है? सर डैश लाइन आएगी सर. हाँ, डैश लाइन मतलब डॉटेड लाइन आएगी, डॉटेड लाइन आएगी. बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट तो व्हाइट दिखेगा नहीं, तो ब्लैक एंड व्हाइट लाइन हो जाएगी. शशांक इज लाइक आंसरिंग इट. ओके, लेट्स सी शशांक क्या होता है.
नो नो, गलत हो रहा है, ये कॉपी जीरो कॉपी हो जा रहा है पूरे में, ये नहीं करना है हमें। क्या हो रहा है? Today I'm taking a lot of time. Reason why? Because I don't have many things to teach, so I'm not intended to make any mistake. Just copy it once and paste it over. मैं इसको एक्सटेंड कर रहा था बट वो हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। या मतलब हो जाएगा, बट मैंने उसे किया, छोड़ा नहीं उसको, कर्सर को। मैं बोल रहा था अगर हम इसको और इस आइडिया को थोड़ा और एक्सटेंड कर पाए तो ये चेस बोर्ड बन जाएगा, पता है, बिल्कुल। बिकॉज इसलिए मैंने पूछा था, वो चेस बोर्ड का सो आइडिया चेस सही बोर्ड के लिए अल्टरनेट होना चाहिए ना सर, हम लोग एक के नीचे एक, मतलब जीरो के नीचे जीरो है और ब्लैक है। 255 है, चेस ये लिए तो चेस बात बोर्ड ठीक, पे बनेगा। अभी ठीक है, तो फिर मैंने ठीक ही किया, क्योंकि चेस बोर्ड, इतना छोटा चेस बोर्ड जो है दिखाई भी नहीं देता। लाइंस, लेकिन लाइंस दिख जाएंगे ना शशांक, 10 पिक्सल बाय यस 10। राइट। शशांक, तुमने मैटलैब पे काम किया है? यस सर, थोड़ा बहुत बीटेक में। बीटेक कहाँ से किया था? सर ट्रिपल आईटी जबलपुर। गुड। चलो इतना काफी है, ठीक है। सो दिस इज द इमेज विच इज क्रिएटेड, द नेम ऑफ द इमेज मैट्रिक्स इमेज। सो लेट्स गो टू दी लेयर, और उसके बाद इसको रीड कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैट अंडरस्कोर img नाम का एक वो ले लेते हैं वेरिएबल, उसमें रीड कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मेट था, XLS रीड। नॉट इंटरेस्टेड टू सेव इट। चलो देख भी लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, बट ये स्पेस घेर लेगा, अभी नहीं दिखा रहे। आपको पता है ऑलरेडी रीड हो चुका है वो, तो नहीं दिखा रहे। ओके, ऐसे काम करेगा ये? नो सर। नहीं, इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इमेज का फॉर्मेट नहीं दे रहे हैं इसको। मैट अंडरस्कोर इमेज क्या करना सो चाहिए? बट इट्स अ सो मैट्रिक्स है सर, तो इमेज में कन्वर्ट करना चाहिए उसे, एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। नहीं उसको, हाँ वैसे करना तो चाहिए, एक बार रीड करते हैं उसको एज ए इमेज, एज ए इमेज रीड करना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट नो, ऐसे तो काम नहीं करेगा वो, ये आइडिया ठीक नहीं है, मुझे भी पता सर था। मैट टू ग्रे यूज कर सकते हैं। या दैट्स अ गुड ऑप्शन। मैट टू ग्रे, ऐसा ऑप्शन होता है? यस सर। एक वो मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए होता है सर, ग्रे स्केल टाइप से।
सर ये सीधा इमेज फंक्शन यूज कर सकते हैं। I've just thrown the idea without like trying it. I should have like done it before. चल गया ये तो. हाँ, good. I'm just waiting for like, okay. Yeah, Prashant, you are right. No? So the first column I have taken as all the value 0. So you can understand कि यहाँ पे 10 columns हैं and every pixel is having the value 0. That's why this all the way this line is coming as black only. So you don't confuse कि यहाँ पे क्या हो रहा है. ये अपने आप में ऊपर वाला एक लाइन जो है, एक रो जो है वो 10 कॉलम्स हैं उसमें. ठीक है, इस तरीके से every single column is composed of 10 एलिमेंट्स. ठीक है, इस वाइट वाले में 10 कॉलम्स हैं, सिंगल कॉलम में ही 10 मल्टीपल सैंपल्स हैं. इसी तरीके से ब्लैक वाले में भी ऐसा ही है. ठीक है, सो दिस इज हाउ. अगर हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया होता, यहाँ पहली वाली रो हमने क्या रखा था, ऑल द जीरोज भी हैव टेकन. सो अगर हम दूसरी लाइन को ऐसे स्टार्ट करते, फर्स्ट वुड हैव टेकन 255 here and zeros are here, then it could have come in the format of chessboard only. Okay, so this is how we can work with the excel file. excel का मैं ये अच्छा बताया है तुम लोगों ने. so you guys have a very good idea now. मतलब आप लोगों को भी अच्छा आइडिया हो गया, मैंने भी कुछ सीखा आप लोगों के साथ, दोनों लोगों का हो गया बेनिफिट. अभी तो मेरे तरफ से तो मतलब ज़्यादा मुझे भी नहीं आता, इससे ज़्यादा मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट में जाएंगे तो फिर मैं काम कर सकता हूँ. सिखाने के लिए ये बहुत है. स्पीच का मुझको नहीं आता है, स्पीच वाला मैंने कभी काम नहीं किया, बट प्रोजेक्ट बहुत है मेरे पास, मतलब जिनको इम्प्लीमेंट करके दिखाया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है. मतलब मेरे अपने नहीं है, मैंने भी कहीं से ऐसी सीखते हुए किया था उनको. ठीक है, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी आप लोगों का कोई क्वेरी है तो करते हैं, क्योंकि मुझे पता था सर नहीं आएंगे आज, तो सर को बता दूंगा. आज का सेशन भी हो गया है. एज ऑफ नाउ एनी अदर असाइनमेंट इज नॉट टोल्ड बाय द सर के वी हैव टू गिव एनी अदर असाइनमेंट. जो आपके पास है वही प्रेजेंटेशन वाला बचा हुआ वही कर लेगा. तो आस्क योर क्वेश्चन वट एवर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मिला है उससे, या कोई भी और क्वेरी है तो. सर सर अभी आपने जो इमेज में किया सर, आपने तो ग्रे में कर दिया, तो सर वो तो पहले से ही ब्लैक एंड वाइट था तो वो आ गया. अगर हम आरजीबी में करना चाहे तो आरजीबी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आरजीबी का मतलब होता है कि इट्स अ 3 डायमेंशन में आप चले गए है ना. शशांक वगैरह ने काम किया है तो आप रिलेट करने की कोशिश करना. मैं क्या बता रहा हूँ कि एवरी पिक्सल इज नॉट हैविंग अ सिंगल वैल्यू, एवरी पिक्सल विल बी हैविंग 3 वैल्यू. जैसे मैं इसको मैट्रिक्स को ओपन करके दिखाता हूँ आपको. So you understand this particular point is only having how many values, only one value it is having. So हम बोलेंगे कि मेरी इमेज का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो 0 है. इट मीन्स व्हाट, इट्स अ ग्रे इमेज. बिकॉज ग्रे इमेज क्या होता है, ग्रे इमेज में आपके पास सिर्फ एक पिक्सल का एक ही इंटेंसिटी होगा. लेकिन अगर आपको इसको आरजीबी में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर इस तरीके के 3 फाइल्स होने चाहिए. ये जहाँ पे लिखा है ना मैट्रिक्स इमेज, इस तरीके के 3 फाइल होने चाहिए, और हर एक तीनों फाइल का पहली रो का पहला कॉलम जो भी इंटेंसिटी वैल्यू रखेगा, तो पहला जो वैल्यू होगा वो रेड के लिए होगा, दूसरा जो वैल्यू होगा वो ग्रीन के लिए होगा, तीसरा वैल्यू जो होगा वो ब्लू के लिए होगा. मींस एवरी पिक्सल विल बी हैविंग 3 वैल्यू.
then only you can create an RGB image. Otherwise, only having a single pixel will not help you. तो यूजुअली सर 3 डायमेंशनल हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो जो थर्ड जेड डायरेक्शन होता है उसमें जो 3 कॉलम्स होते हैं वो आरजीबी के लिए ले लेते हैं। बाकी 512 बाई 512 की जैसे इमेज है तो वो मैट्रिक्स 512 बाई 512 बाई 3 की बन जाएगी। यस, हाँ वो भी कर सकते हैं, दैट इज अनदर आइडिया। सर वो जो प्रोजेक्ट के लिए सर ने बोला था ना सर पेपर सिलेक्शन करने का, हाँ तो हाँ, सर वो एज डिटेक्शन बाय सोहेल मेथड जो होता है सर वो डिसाइड सोवेल किया ऑपरेटर, सर। सोवेल जी सर। ऑपरेटर। I was 2000 Shashank, I was expecting your call that day only. I asked you ना, you call me at 6 o'clock. ये सर एक्चुअली सर उस दिन अगले दिन पेपर था तो मैं कॉल नहीं कर पाया था। शशांक, you already know that सोवेल से मतलब जस्ट लगाओ और काम हो जाता है, देख लेना। नहीं सर वो पता है एक्चुअली हाँ, सर उसका वैसा इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, मतलब लाइक विदाउट दैट डायरेक्ट ऑपरेटर उसमें नहीं, ज्यादा मैं बड़ा समझ नहीं गया। है। हाँ वो तो मैं समझ गया, बट सोवेल ऑपरेटर पे तुम कोई भी पेपर उठाओगे एज डिटेक्शन का, तो मुझे नहीं लग रहा कोई नया पेपर मिलेगा, बहुत पुराना कहीं 2000 के आसपास का पेपर जाके मिल जाए। 2007 2009 के हैं सर कुछ पेपर्स। बहुत पुराना काम नहीं है, तुम बताओ। सर बात ये कि सर कुछ नया करना और फिर टाइम भी कम है और अकेले करना है सर, तो थोड़ा अरे तो दिक्कत होगी नहीं जिन सर। लोगों का 3 का ग्रुप है उसमें घुस जाओ ना यार। हाँ सर मतलब फिर वो शशांक, तुम्हारा इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट इमेज प्रोसेसिंग पे? सर थोड़ा बहुत सर मैं पहले काम किया है मैंने इमेज इंडेक्सिंग टेक्निक्स पे, तो मैं वही कंटिन्यू करने की सोच रहा था। क्योंकि मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, और अगर तुम इमेज में जाना चाहो, मतलब सोनली फॉर यू, नॉट आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट, ओके? यस यस सर। है ना, सी आई नो अ पर्सन जो कि जिसे बोलते ना, अगर आप लोगों को जैसे जॉब वगैरह पकड़ना है, टीचिंग में नहीं जाना, पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर भाई अपने आराम से जो भी काम करना है अपना टारगेट बना के रखो। लेकिन जिन लोगों को टीचिंग में और पीएचडी में और रिसर्च में आगे जाना है, वो लोग अगर इंटरेस्टेड है तो देखो तुम लोग के पास पेपर होना चाहिए फिर, अच्छा है ना। सो यस सर। आई नो अ पर्सन हु इज अ मशीन मतलब जो पेपर छापता है गंदे तरीके से, मतलब उसको तुम काम करके दो और वो पेपर छपवाता, महीने महीने में पेपर आ जाते हैं उसके। जबकि सर से बात करना, सर से पूछने का भी सर एक एससीआई करना है मुझको, कितना टाइम लग जाए, तो सर बोलेंगे 1 साल लग जाएगा। उस बंदे के हर महीने 4-5 पेपर आते हैं। मैं तो खुद ही उनके साथ काम कर रहा हूँ, बट उनके डायमेंशन इतने ज़्यादा ओपन है, तो और फेलोशिप बहुत मिले हुए हैं। सर से मैंने बात कराई थी उनकी फेलोशिप, मैडम क्यूरी फेलोशिप है, स्पेन, स्वीडन, और पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा आता है उनके पास, और कोई ज़्यादा एज भी नहीं है, 35-40 की एज के है। तो लेकिन उनको मतलब वो ना एक जुनून है काम करने का, तो कोई बंदा मिल जाता है तो ऐसे नहीं है कि जैसे तुमने उनसे अप्रोच किया और तुम्हें लग रहा है कि मेरा काम हो जाएगा सर के साथ, तो नहीं, फिर वो पीछे पड़ जाते हैं। अगर तुम उनसे मिलोगे तो वो तुमसे काम करवा लेंगे, इस तरीके के हैं। लेकिन पेपर निकलते हैं उनके साथ बहुत ही धुआंधार। तो उनका वो ग्लास मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी उनका 1-2 बार पेपर में छप चुका है, अमर उजाला वगैरह ने छापा था, ग्लास मैन ऑफ इंडिया है। तो अजतांशु वेदरत्नम मिश्रा नाम है, तुम लोग जाओ सर्च करना उनके बारे में। तो बहुत ही जिंदा दिल और मस्त मस्ती करने वाला आदमी, लेकिन काम दबा के करता है, इस तरीके का इंसान है। तो वो आजकल ग्लास वगैरह पे बहुत काम करते हैं, ग्लास के कंपोजिट बनाना, उनकी फिर टेस्टिंग करना, कंक्रीट वगैरह की टेस्टिंग करना। तो उसमें इमेज का रोल क्या आता है उसमें, कि क्रैक्स वगैरह का जो होता है, इमेज में क्रैक डिटेक्शन का। तो मैंने सम ऑफ इधर उज्जवल और हर्षित में से किसी को एक क्रैक डिटेक्शन का बोला था, रोड पेवमेंट का। लेकिन वो आइडिया बहुत नया नहीं है। लेकिन जो ग्लास में जो क्रैक आते हैं, उनको उनका प्रोपगेशन कैसे होगा, किस साइड पे क्रैक बढ़ेगा, कितना जल्दी ग्लास डैमेज हो जाएगा, वो सारे एनालिसिस उनको करके देते जाओ, और पेपर पेपर निकलते हैं उसमें, है ना। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो ग्लास में क्रैक डिटेक्शन के लिए, उस नया कुछ मेथड डेवलप करने के लिए, वो लोग इमेज में, लेकिन तभी जब आपका इंटरेस्टेड फील्ड हो,
इमेज प्रोसेसिंग, बिकॉज किसी ऐसे फील्ड में भागना ल्यूक्रेटिव लग रहा है, मतलब थोड़ा सा, बट आगे जाके फंस जाओ। आप सिग्नल में अच्छे हो, आप स्पीच में अच्छे हो, जबरदस्ती आपको मैंने एक आइडिया दे दिया इसलिए आप इमेज में भाग गए, वो मत करना। जिन लोगों को इंटरेस्ट हो, थोड़ा का ग्लास वगैरह के बारे में पढ़ो, है ना, उसके बाद में से बात करो। ओके सर। ओके, सो एनी अदर, anybody else want to ask anything? I guess no. तो हर्षित बंद कर दिया जाए फिर आज का सेशन। हर्षित है ही नहीं इधर। ओके, सो आप बताओ, ये भारत भारत तुम्हारा सही चल रहा है, भारत जैन? Yes, sir. So I don't think that we will be having the any more sessions because exams are coming, yours and mine as well. तो सब कुछ हो ही गया ऑलमोस्ट। तो अगर आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो फिर आप सर से बात करके, गिव मी अ मिनट, क्लास चल रहा है अभी, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, सो यस, अतुल्य कृष्णन, यू देयर अतुल्य? भारत आप कहाँ से बेटे? Uh, दिल्ली से सर, दिल्ली में कहाँ से हो? अशोक विहार। अशोक विहार। अशोक विहार ये लक्ष्मी नगर के आसपास पड़ता है क्या? कॉलेज है वहाँ, उसके अंदर हाँ, लक्ष्मी नगर कॉलेज? लक्ष्मीबाई कॉलेज, नहीं, ये आनंद नॉर्थ विहार वेस्ट, से, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ये आनंद विहार से कितना दूर पड़ता है अशोक विहार? आनंद विहार से तो पड़ जाएगा, क्योंकि लास्ट 6 मंथ आई एम इन दिल्ली ओनली। अच्छा। मतलब मतलब ये क्वारंटाइन का पूरा टाइम और ये लॉकडाउन का 7-8 मंथ आई पास्ट माय लाइक दिस लॉकडाउन एंड ऑल इन दिल्ली ओनली। ओके, चंद्र प्रकाश, पहले मैं सबसे पूछ लेता हूँ उसके बाद हम ना बताता हूँ। चंद्र प्रकाश, यस सर। आप कहाँ से बेटे? सर मैं यूपी में सर, लखनऊ के पास सुल्तानपुर, फैजाबाद। बहुत इस अच्छे से वक्त पता है, बहुत अच्छे से यस पता है, KNIT सर, सुल्तानपुर। यस सर, बनारस सुल्तानपुर के पास में। चलो ठीक है, हर्षित ने तो बताया था मुझे। हर्षित अगेन, अच्छा ही जॉइंड नाउ। तो उसका सर नेट नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत ज्यादा। हर्षित तुमने बताया था बलिया से हो, है ना? नो सर, मैं तो सर उत्तराखंड से हूँ। हाँ, हर्षित उत्तराखंड से, उज्जवल बलिया से था। ठीक है। एंड मोहम्मद मामून? हम बिहार से। ओके, सही है, फिर तो सर के टच में रहना। बताया, बहुत एरिया बहुत चलता है, मतलब मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी वालों को फेवर करूंगा, दिल्ली वालों को, और आसपास के जितने स्टेट वाले उनको करूंगा। नहीं वो मतलब ऐसा नहीं सर है, आज सर तो फिर प्रसाद खिला रहे होंगे। पता नहीं सर कहाँ है सर, छुट्टी तो मारे हैं आज सर, तो हो सकता है कि बिहार ही चले गए शायद वो। बट सर का स्टोरी अभी सर से सुनना बहुत, मतलब मैं उनसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे गाइड हैं, बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब कहाँ से उन्होंने उठकर, जमीन से जुड़े हुए हैं बहुत, कहाँ से उठकर कितना हार्ड वर्क करके उन्होंने, मतलब अपने आप को इतने अच्छे ऑफर छोड़ के 2-2 लाख रुपए मंथ की सैलरी का ऑफर छोड़कर बहुत परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत डेडिकेटेड है, वाइफ है, बच्ची है, उनकी माँ है, तो मतलब सर के, मैं तो उनको, उन्होंने खुद नहीं बताया मुझे ये सारी चीज़ें, somebody else who know him very closely, तो he
who told me, that told me. Okay, sir. Mona. Yes, sir. Where you from, Mona? Sir, I'm from Kolkata. Okay, Kolkata. हाँ Any specific area in Kolkata? कोलकाता आपको दमदम पता है? Yes, yes, I know that. अच्छा हाँ, तो दमदम से हूँ मैं. Okay. चलो फिर कॉलेज जब शुरू होगा तो सारे बच्चों से एक बार मिलेंगे जरूर अपना, और वैसे भी रिसर्च का रहेगा तो तुम लोगों का कहीं ना कहीं मेरे से काम पड़ेगा. नॉट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस आई कैन शेयर, मतलब कई बार ना अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तुम लोगों को लगता है काम नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है ना, काम सारे होते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया का इसका सॉल्यूशन ना हो. ठीक है, सो अप्स एंड डाउन्स कम्स, है ना. तुम लगेगा यार फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैं, दिस हैपेंस, बट तभी तुम लोग को मेरी याद आएगी जरूर. आई एम सो पॉजिटिव, मतलब सर मैं सेकंड सेमेस्टर सर हो रहा है कि जैसे पटनायक सर कह रहे थे वो भी ऑनलाइन? अरे यार ये सब नहीं होना चाहिए, मुझे खुद ही मतलब सर के पीछे पड़ा हूँ सर. हम एटलीस्ट हम लोग को जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, मास्टर्स वाले और पीएचडी वालों को वहाँ बुला के, क्योंकि रिसर्च बहुत अफेक्ट होता है यार रिसर्च से, घर पे रह के नहीं हो सर पाता इतना सब कुछ. सर ये आईटी वगैरह तो बुला नहीं है सर एमटेक और पीएचडी वालों को? नहीं पता है, सारे ऑर्डर हो चुके हैं गवर्नमेंट की साइड से, सारे ऑर्डर हो चुके हैं कि कम से कम रिसर्च वालों को, रिसर्च नहीं मतलब अंडर ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी वालों को सबको हम्म, बुला लिया है. बट ये हम्म, वहाँ की गाइडलाइंस है ना सर को. ऑर्डर रूल ऑर्डर नहीं निकाला ना उसने, गाइडलाइंस दी हैं कि आप बुला सकते हो, मतलब तो हाँ कोई दे कैन, यस ऑर्डर, आई मीन गाइडलाइंस हो गए हैं, तो वो उसके बेसिस पे हम लोगों को बुला लेना चाहिए, लेकिन वो खुद ही लोग इतना डरे हुए हैं कि बुलाना नहीं चाह रहे, या जो भी रीजन रहा हो. अभी तो सबका मस्ती चल रहा है, लेकिन तो इसे मुझे लगता है पूरा सरकारी वाला तरह से काम चल रहा है, मतलब स्टूडेंट बहुत बिल्कुल ज्यादा लॉस में है ना. बिल्कुल 100% लॉस में, हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा लॉस. कोई रिसोर्सेस नहीं है, लाइब्रेरी के रिसोर्सेस नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर वैसा नहीं है हमारे पास लाइसेंस वाला, उन सब चीज़ों से बहुत नुकसान हो रहा है. अच्छा, और सारे लैपटॉप सारे सॉफ्टवेयर लैपटॉप में कंपेटेबल भी तो नहीं है सर, लैब्स ही यूज नहीं कर पा रहे हैं. अब कब तक सर, मतलब हाँ, मतलब पूरा तो ऐसे ही सब यूज हो जा रहा है लैपटॉप. और भी बहुत सारे यार, मतलब जो अनसीन इफेक्ट हैं वो तो दिखाई नहीं दे रहे ना हमें, मतलब पूरे पूरे टाइम में 17-18 आवर्स लैपटॉप पे मैं दिन बिताया हूँ, एक एक दिन. फिर असाइनमेंट्स इस तरीके से आते हैं, कुछ कुछ लोगों के असाइनमेंट तो हैंड रिटन नहीं चाहिए, कुछ लोगों को असाइनमेंट लेटेक्स फॉर्मेट में चाहिए, तो लेटेक्स फॉर्मेट सीखना इतना आसान नहीं था. लेकिन फिर क्या किया है हम लोगों ने, तुम लोगों ने पिछले 6 मंथ में, हम ही लोग जानते हैं. और सर आज ही हमको मिला है लेटेक्स में, अब आगे हमें अगले असाइनमेंट सारे लेटेक्स में देने हैं. किसने दिया है? एनएसके वाली मैम ने, सौम्य मैम ने. सो में मैडम अब सर कुछ आता पता ही नहीं उसका ना. अब सारा उसमें 3 सॉफ्टवेयर एक साथ डाउनलोड करने हैं और इंस्टॉल करने हैं. तो पहले कोई से नहीं, लैपटॉप मैं इतना एक हैवी हो काम चुका है. करो, एक काम करो, कल सैटरडे है ना, यस सर. कल सैटरडे को एक सेशन रख लो 1 आवर का, क्योंकि मुझे पता है कितनी डिफिकल्टी होती है, मैंने सीखा है इसी उसमें. तो मैं तुम लोगों को ऐसा बेस्ट आइडिया दूंगा ना, 1 घंटे के अंदर तुम्हें लेटेक यूज करना आ जाएगा, 1 घंटे के अंदर. हम मुझे तो कोई इशू नहीं है अगर सर सब कंफर्टेबल हो तो. ठीक है सर. है ना, देखो करना तो तुम्हें है ही है ना, तो सीखना तो पड़ेगा, खुद से सीख लो, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ. सर एक गाइडलाइन मिल जाएगी तो अच्छा ही रहेगा. है ना, क्योंकि मैंने काम किया है ना, मैंने अभी 6-7 असाइनमेंट सबमिट किए थे. तुम लोग को एक्चुअली क्या है ना, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि टफ है, लेकिन सिंटेक्स फिर से वहीं पे आपको ध्यान देने पड़े. मैं पूरा एक मेरा असाइनमेंट बना हुआ है, वो असाइनमेंट को एक्सप्लेन कर दूंगा, और असाइनमेंट के मतलब वो जो उसका लेटेक फाइल होता है उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, अपना कॉपी पेस्ट करते जाना मस्त, उसी में पूरा का पूरा हो जाएगा तुम्हारा. कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना. और कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसके लिए चाहिए, तो जैसे, अच्छा अभी विंडो शेयर नहीं है, तो एक छोटा सा आइडिया जस्ट 2 मिनट में बता देता हूँ क्या क्या चाहिए होगा आपको, क्योंकि तो ये यहाँ पे है, टेक्स्ट मेकर है, मैंने ये इंस्टॉल किया था. तो जस्ट आपको टेक्स्ट मेकर चाहिए पहले तो.
और एक साइट होता है ओवरलीफ करके है, ठीक है। तो ओवरलीफ पर भी आप ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, और ओवरलीफ का जो साइट है उस पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। तो यहाँ पर इधर वाली साइड, यहाँ से एग्जीक्यूट कराते जाना है क्विक बिल्ड करके, यहाँ पे लिखते जाते हैं हम, और यहाँ पर हमारा पीडीएफ क्रिएट होता चला जाता है। तो बेसिक आइडिया तो मैं आपको जब आप कहोगे तभी दे दूंगा। जैसे ओपन रिसेंट में जाके मैंने सबसे लास्ट पीसीए मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के लिए ये अपना लेटेक पर वो तैयार किया था अपना असाइनमेंट। तो ये पूरा का पूरा उसका फॉर्मेट है। तो आपको शुरू में यही नहीं पता होगा ना कि कैसे करके ये सब चीज़ें लिखनी है, डॉक्यूमेंट क्लास 12.A4 पेपर आर्टिकल यूज पे, आर्टिकल के बजाय रिपोर्ट बनाना है तो क्या करेंगे, और कोई भी चीज़ जैसे देख सकते हो इतना मतलब देखने में टफ लगता है ना ये, तो ये इतना आसान नहीं। तो मैं सीखने में कम से कम, मैं बता रहा हूँ, अपने आप सीखोगे तो कम से कम आपको लगेगा 10 to 15 days अपने आप, नॉट लेस देन दैट। बिकॉज आप बैठोगे कहाँ पर, अब आप कहोगे कि इतना क्यों टाइम लग रहा है, आप फंसोगे कहाँ पे, फंसोगे एरर में, आपसे एरर क्लियर नहीं होंगे। तो वो एक एरर आप मेरा एक एरर मेरे 6 आवर्स खाया था, 6 आवर्स कंटिन्यूसली बैठा रहा था मैं इस पे। और मुझको जिस दिन असाइनमेंट सबमिट करना था उससे जस्ट प्रीवियस डे मैं मॉर्निंग 8 o'clock बैठा था और नेक्स्ट मॉर्निंग 6:30 सोया। मतलब आप समझ लो 22.5 आवर जो था, मैं नॉन स्टॉप मैंने लेटेक पे काम किया, तब जाके मेरा असाइनमेंट कंप्लीट Yes. हुआ। ठीक है, तो ये वो है, इसी में ही मैं पूरा बता दूंगा, इसी से ही आपका इस तरीके का डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाएगा। देखा इसमें कई इमेजेस दिख रही हैं आपको, नहीं ना? इमेजेस यहीं से कॉल No, होंगे, sir. है ना, इसी से सेक्शन तैयार होंगे, इसी से ही ये पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ टेबल मैंने डाला नहीं, कंटेंट का ये किस तरीके से पेज नंबर, ये सब इसी से ही तैयार होगा। ठीक है, ओके। सो निधि वेयर यू फ्रॉम? इंदौर, ओके, ठीक है। हाँ, या गुड। लेकिन इंदौर दूर है काफी यहाँ से, कितना? 400 के आसपास होगा, 400 किलोमीटर अराउंड। प्रज्ञा, सर वही मुझे सर ग्वालियर से। सेल्फ, ओके। हम्म, शशांक, यू? शशांक, यू? सर मैं कटनी से हूँ सर, मतलब सागर से हूँ एमपी में, करेंटली वर्किंग इन कटनी। पटनी, आर आर पटनी क्या बोल, मैं समझा नहीं। सर कटनी जगह है सर ओके, जबलपुर के कटनी। पास, तो वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, और होम टाउन सागर है, एमपी में। So you are a sponsored one, यस सर, regular? यस सर। किस उसमें कंपनी में हो? तो सर कंपनी में नहीं हूँ सर, मैं लेक्चरर हूँ सर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, कंप्यूटर साइंस। अरे बढ़िया यार, अच्छा है। तन्वी? सर आई एम फ्रॉम राजस्थान सर। राजस्थान कहाँ पर? कोटा। ओके, बिकॉज मैंने अभी मेरा लास्ट जॉब मैंने सीकर से छोड़ा है, राजस्थान सीकर से। अभी अगस्त में मैंने रिजाइन किया, जब यहाँ ज्वाइन कर लिया था तो वहाँ छोड़ दिया था। 6 मंथ मैंने सीकर में काम किया। कोटा तो अच्छा जगह है। उमंगा, यू आर ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, उमंगा? सर जयपुर। यस, बिकॉज उमंगा कुमावत, बिकॉज मैं सीकर में था तो वहाँ पे बहुत सारे, एक लड़की थी ज्योति कुमावत, तो वो राजस्थान से थी, तो मैं समझ गया सरनेम राजस्थान का है। जयपुर तो बहुत हो गया आना जाना भी। तो मैं तो मैं क्या बताऊँ अपने बारे में कि मैंने 2007 में ही अपना बीटेक कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने सीडेक किया पुणे से, और 1.5 साल उधर ही काम किया था। फिर उसके बाद आई joined this MTech from Thapar University in 2010, passed in 2012, and मतलब मेरा रिसर्च ही था इंटरेस्ट, तो बट आई वाज लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब आल्सो, तो देयर आई सिलेक्टेड इन विप्रो, बट मैंने काम नहीं किया फिर उसमें। तो
then I cleared this bank exam, RRB वाला जो था, ऑफिसर स्किल 1 के लिए, बट देन अगेन आई डिड नॉट जॉइन दैट। LIC भी हो गया था क्लियर, तो टेक्निकल में ही रहना था ऐसे, इसलिए फिर टीचिंग में रहा काफ़ी टाइम। टीचिंग में रहते रहते फिर बाद में फाइनली ये ज़रूरी था PhD ज्वाइन करना। तो अभी बस चल रहा है देखो। शशांक ठीक है, मतलब तुमसे बात करेंगे, हो सकता है तुम यू नो बेटर थिंग्स। ये वहाँ पे तो शशांक यू आर एज ए इंस्ट्रक्टर ओवर देयर। ये सब मैं लेक्चर्स लेता हूँ। आई मीन आई टीच कंप्यूटर साइंस। ओके, बट वो हुआ कैसे था वहाँ पर आपका? सर गेट के थ्रू, गेट के थ्रू। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो फिर देखते हैं, फिर बाद में कोई और डिस्कशन होगा तो उसको बढ़ाएंगे आगे। फिलहाल मेरी तरफ से तो यही था, बाकी सर से पूछेंगे अगर कोई और इनपुट देना होगा तो वो। और अपना ये प्लान कर लेना, है ना, प्लान करके मुझे बता देना क्या टाइम आप लोग के लिए सूटेबल है, उस हिसाब से हम एक लेटेक का एक वो रख लेंगे सेशन।